Hi, good afternoon, everyone. My respected seniors, dear friends, colleagues, and lovable juniors. So, we are live on Facebook with respected Dr. Pankaj Talwar sir to discuss a very important topic male sexual dysfunction. This is one topic which is not discussed by any of the men in our society, amongst their family members, to even doctors, or even in the friends or in their peer groups. So patients having minor or major sexual dysfunction, men, they don't even know whom to approach, whether to approach a sexologist, to andrologist, urologist, or gynecologist. So ultimately, it this sexual dysfunction, maybe it is there, maybe it is just a myth, maybe it is just in their minds. So it impacts their emotional balance. Their career, their family relationships, and even it's going to affect their fertility potential. So I would be moderating this session. I'm Dr. Reena Bansal, practicing as an obstetrician and gynecologist in a small city, Nabha, in district Patiala, Punjab. So I'm doing ultrasounds and infertility, and I have been trained by Dr. Pankaj Salwar sir. He is a professional of impeccable integrity and has got extraordinary skills. He has touched my life from deep within, and so many gynecs like me. He is bold, outspoken, candid, and thinks out of the box always. And I think he has pledged to touch lives of every single gynec or obstetrician of our country. And across the time, he has passionately worked for the betterment of the lives of medical practitioners, especially, and patients, of course. I have got tremendous respect for Dr. Pankaj Talwar. So, although he needs no introduction at all, he's an international personality already, but still, a brief biodata about him. He is PhD in clinical embryology. He has been awarded Vishisht Seva Medal by the President of India for working in the field of infertility. He is director at IOMA Fertility Clinic and IC2 Training Academy, Gurugram. He is a dean he's a dean department of clinical embryology and reproductive sciences, Sridhar University, Pilani. He is a director clinical ART programs at Gurugram University. He has got experience of setting up 29 ART labs globally. And he has received Best Armed Forces Project and Research Paper Award from the Director General Armed Forces in 2011 and 2012. He's got Excellence in Fertility Training Award, which is a national award 2024. He has people have enrolled in 2100 courses over 23 countries and 7,000 hours of hybrid training programs. They enrolled globally. He has, set up 250 live workshops in the embryology and ART training programs, 10 orations and 4 lifetime achievement awards, which I think is lesser a number, as so much of work he has done in the field of infertility. He has edited 9 books and 150 publications, which is a huge number, dear friends. And he's a leading gynecologist of North India, 2019 ET Health, according to. And he's a pioneer of ovarian tissue freezing in India. So he has done tremendous work in the field of infertility. I would invite Dr. Pankaj Talwar sir to touch this very important topic, male sexual dysfunction. Sir, please. So thank you, Reena. Thank you so much. आप लोग सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे and as I start our day today, thank you so much to you, Dr. Reena, for being my co-moderator. Thank you so much, Thank you, everyone. sir. It's an honor for me. We have to learn a lot from you. And we're learning a lot from you every day, every passing day. So we do such live Facebook lives twice a month. We cover multiple different topics, and today we're going to talk about male sexual health, a taboo in itself. Male itself is a taboo in itself. When we talk about sexual health, no one talks about it. Now, why did we pick up this particular topic? आज हमने टॉपिक क्यों चुना? इस टॉपिक को छेड़ने का मेन कारण क्या है? So Reena, I'll tell you about 2 things which came to my mind. In past 1 week, I have seen 2 young couples
Both have got age of around 34-35 years, the men. Both are from very good families. Hmm. बहुत ही बेहतरीन पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग मेरे पास में आए with their wives. Now what happened? What I learned from them is how we look at a man is pretty wrong and primitive. मैं आपको पहले कपल की कहानी सुनाता हूँ, जैसे बोलेंगे इंडेक्स केस ए. Yes, sir. Married to a very young girl Hmm. and married for around 3 years now, and they are staying together. इन 3 साल के अंदर किसी कारणवश दे कुड नेवर हैड एन इंटरकोर्स. अभी कभी आपस में वो लोग संभोग नहीं कर पाए. Hmm. Yes, sir. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? आई फाउंड दैट ही हैड अ वेरी पुअर नॉलेज अबाउट द एनाटमी. बॉडी कैसे काम करती है उनके बारे में उनको नहीं पता. बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स Hmm. हैं, बट बॉडी काम कैसे करती है. एंड देन आपस में कांटेक्ट नहीं रख पाते बिकॉज ही हैज गॉट ए सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. Yes, sir. सो उनको मेन प्रॉब्लम थी स्तंभन दोष की. स्तंभन दोष इज समथिंग वी कॉल एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन. Hmm. स्तंभन मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इसके बारे में आई एम श्योर दैट वी गोना टॉक ए लॉट अबाउट टुडे. Yes, sir. दुनिया भर की दवाइयां खा ली उन्होंने और वो दवाई उस पर काम नहीं कर रही है. बड़ा हेल्दी लड़का है, टेनिस खेलता है, स्विमिंग करता है, अच्छी सी कार भी ड्राइव करता है, बड़े घर में रहता है, साल में 3-4 बार फॉरेन ट्रिप भी करते हैं. तो Hmm. कारण मैंने जरूर जानने की कोशिश करा कि क्या कारण है कि आप के बीच में ये इशू आ रहा है. Hmm. उसने मुझे झंकोड़ दिया. जो उसने मेरे को बोला, उनकी मदर भी साथ में थी, उसने मुझे झंकोड़ दिया. कहते सर, आज से 5-6 साल पहले से आई वेंट इनटू पोर्नोग्राफी. लाइक ऑल द लॉट ऑफ पीपल गो एंड विजिट पोर्नोग्राफिक साइट्स एंड आफ्टर दैट आई हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट. Hmm. मैंने पढ़ा पोर्नोग्राफी कैन अफेक्ट सेक्सुअलिटी, बट मैंने अपने सामने एक जीता जागता असाधारण केस देखा जो कि आई थॉट कि ऐसा शायद होता नहीं होगा, किताबों में लिखा जाता है, बट मैंने ऐसा केस देखा. इसे नाउ आई कैन नॉट हैव कॉन्टेक्ट एनी मोर. मेरे को प्रॉब्लम्स आती है. एंड ही blamed him to give history of pornography. Otherwise a very healthy non-smoker, non-drinker. तो मुझे एक नया विषय मिला बात करने के लिए. अगला कपल मेरे पास 2 दिन पहले एक और कपल आया मेरे पास में. अगेन वेरी पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग मेरे पास में आए और इस इंसान ने मेरे को बताया कि उनकी शादी को 4-5-6 महीने हुए हैं और जब से शादी हुई Yes, sir. उनको उसको स्तंभन दोष भी और शीत्र पतन भी है. शीघ्र पतन Shigar कहते हैं, Patan. Yes, sir. Yes, sir. प्रीमेच्योर इजैकुलेशन. Premature ejaculation. आई सेड शादी से पहले डिड यू एवर हैड ए कांटेक्ट विद ए वुमन. मैंने ऐसी Hmm. मैं पूछा उनसे. Yes, कहते sir. सर नहीं, मैंने 1-2 बार कांटेक्ट किया एंड आई वाज वेरी हेल्दी. आफ्टर वेडिंग आल्सो आई वाज वेरी हेल्दी, बट आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही कुड नॉट परफॉर्म. Hmm. जब परफॉर्म नहीं कर पाया तो आई थिंक ही हैड अ टिफ विद हिज वाइफ. Hmm. रिजल्ट ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस. तो मुझे ये ज्ञान में आया कि इस प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ एक आदमी का इलाज नहीं करना होता. वी हैव टू लुक आफ्टर द वाइफ आल्सो. इवन शी हैड टू बी काउंसल्ड Yes. बिकॉज Yes. Yes. शायद किसी समय के ऊपर उसने कुछ बोला होगा हमारे इंडेक्स केस नंबर 2 एंड ही फेल्ट Yes. टोटली. अभी वो डर रहा है. तो एक और नजरिया मेरे को मिला. तो फिर ये सोच के मैंने आपको रिक्वेस्ट करा कि व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. बिकॉज एज ए Yes. डॉक्टर Yes, sir. हम एक मेल को देखते भी नहीं हैं. हमें लगता है कि मेल को तो कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है. सारी प्रॉब्लम की जड़ फसाद तो फीमेल में ही है. बांझ है तो फीमेल है, इनफर्टाइल है तो फीमेल है. शादी विवाह के अंदर किसका जाना बैन होता है? फीमेल का. एनी प्रॉब्लम दोनों उंगलियां पूरे फैमिली की फीमेल पे जाती है. बट इन Female 2-3 पे. केसेस हिला के रख दिया एक हफ्ते के अंदर. सो आई थॉट मैं इसके बारे में आपसे बात चाहूंगा आज. Yes, sir. Background and for everyone to know that we have to look at the men with a lot of compassion. हमारे से जुड़ने वाले लोगों के अंदर आज काफी कुछ हमारे मित्र होंगे, कुछ पेशेंट्स होंगे और कुछ इस
हमारे इस विषय को सुनेंगे बाद में। तो रीना, Yes, you sir. you know that we have around viewership of around 2 lakh viewers of our Facebook lives, which is one of the highest in the country. Yes. Yes, 2 sir. lakh people approximately watch us in around a week or so. And that's a great thing we can do. तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही मेरे दिल के करीब है, और ये हम Hmm. कुछ लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। आज हम एक जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे हमारे भारत वासियों के लिए, एंड द पीपल हु आर Yes, जॉइनिंग sir. अस फ्रॉम अब्रॉड, दे शुड नो दैट दे हैव टू लुक एट द मैन विद लॉट ऑफ कंपैशन। हम Yes, sir. जब भी हमारे पास कपल आता है, वी आर फोकस्ड ऑन ए वुमन, बेचारा मैन एक And कोने we के अंदर रह always जाता neglect the male. है। Hmm. मेल, और मेल के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। रीना, रीना आपसे अगर मैं एक सवाल करूं, आप बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं Yes, नाभा sir. की, अभी आपने इतना बड़ा एक फाइब्रॉइड निकाला है लाइक ए फुटबॉल, आप इतना काम करती हैं। Yes, एक sir. सवाल पूछना चाहूंगा, आप आपकी यू आर द लीडिंग फर्टिलिटी डॉक्टर ऑफ नाभा पटियाला। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपके साथ इनफर्टिलिटी केसेस में वुमेन में क्या प्रॉब्लम होती है आपको जो बढ़ रही है? क्या लगता है कि उनके अंदर क्या इश्यूज हैं जो कि पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं? So main is women are फीमेल working today, so they have a फीमेल stressful life. फीमेल में क्या हो रहा है ऐसा कि जो चीज बहुत कॉमनली दिख रही है, सब कहते हैं ना कि उसको उसका ओवेरियन रिजर्व कम मिल रहा है, हमें एएमएच कम मिल Yes, रहा है। yes. आपको महसूस किया इसके बारे में रीना? Sir, even at the age of 35, today only I saw two patients, though they luckily they have two children. I mean, fertility is over, but she's having secondary amenorrhea and FSH came out to be 105. So she's already case of premature ovarian failure with premature ovarian like menopause. So lifestyle has changed a lot. People don't exercise, junk food, and a lot of stresses in their life. So I mean, in Punjab, to sir, like lots of fertilizers they're going and mixed in our foods, which is यस, affecting fertility and ovarian potential. करेक्ट। तो आप मेरी बात के साथ एग्री करेंगी डॉक्टर रीना कि किसी कारणवश फीमेल्स के अंदर शायद वैल्यूज ऑफ एएफसी एंड एएमएच आर कमिंग डाउन, शायद ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है? डू यू एग्री टू दिस और नॉट? हम सब लोग बात करते हैं कि वुमेन में ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, तो सेम चीज हम जो महसूस करते हैं ये हो रही है मेल्स के Yes, अंदर। sir. और मेल्स के अंदर Hmm. क्या होता है, हम मेल्स में अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं, वी डोंट एग्जामिन ए मैन, और मैन के अंदर ये प्रॉब्लम है, दिस इज अकरिंग very prematurely, like a woman has got a menopause, a man also has got an Hmm. andropause। और Andropause. Yes, sir. जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि हम फीमेल के लिए तो इतना कुछ करते हैं, वी हैव ए वुमेन्स डे, Hmm. वुमेन्स वीक, वी हैव गॉट Yes. वुमेन्स, Yes. we got endometriosis day, we got a PCOD day, Hmm. every day Yes. is for Yes. the women। और Male is मजे always की बात, neglected. और मेल के बारे में फादर्स डे आता है जिसके बारे में फादर को भी नहीं पता कि आज फादर्स डे है। आप अगर हम मजे Yes, से sir. देखें तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड माँ के साथ जुड़ जाता है, मैं भी जुड़ जाता हूँ, हम सब जुड़ जाते हैं, माँ तो माँ रहती है, बट पापा का कोई इसमें योगदान है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो मेन आर सफरिंग लाइक द Hmm. वुमेन मे बी सफरिंग, इवन द मेन आर सफरिंग। तो हमारा आज Yes. का जो मेन रहेगा, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम 10 मिनट टू सेंसिटाइज एवरीवन, इज दैट वी लुक एट द मेन, एंड men are going Yes. into menopause early। पहले क्या था, लेकिन women used to go into menopause at Early. 48 49। अभी आपने खुद बोला हमारे देश के अंदर menopause Hmm. का शायद थोड़ा जल्दी हो रहा है। सेम थिंग हैपनिंग विद द Hmm. men also। अब वुमेन में क्या होता है, उनके एग कम Men बनते हैं, also. Yes. Sir. men के अंदर क्या होता है, उनके Hmm. स्पर्म्स की मात्रा शायद थोड़ी सी कम हो सकती है, परंतु दे हैव गॉट सेक्सुअल डिसफंक्शन। when they become hypogonadic, Dysfunction. यानी कि बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा कम बनती है, लाइक ऑफ टेस्टोस्टेरोन, Hmm. दे मे बी मेकिंग स्पर्म्स, वो बनाने के लिए मात्रा सफिशिएंट है, पर्याप्त है, परंतु फॉर देम टू हैव ए सेटिस्फैक्टरी इंटरकोर्स, या संभोग करने के लिए वो हार्मोन की मात्रा थोड़ी कम है, या फिर वो इतने थक चुके हैं हमारे आदमी कि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये आज का सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। Hmm. इसको हमको पूरे Yes. भारत Yes. को बताना है
कि अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है एट 40 years of age और इवन अर्लियर 35 years of age, come to a doctor, और डॉक्टर कौन है? डॉक्टर रीना इज द डॉक्टर बिकॉज यू आर सिटिंग ऐसे guy. So they should So come now all scenario the has changed. yeah. तो उनको आपके पास में आना है और आपको भी उनको उनसे बात वार्तालाप करके उनसे पूछना है, उनको अलग नहीं कर देना है. So this is the main mission of ours in today next nearly 1 hour. So Reena, I've spoken quite a lot. So I'll hand over the mic back to you with one simple question. नाभा के अंदर ऐसे Yes, sir. जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी मात्रा कैसी है? मेन के अंदर आपको लगता है कि मेन के अंदर भी प्रॉब्लम है जो पूरे देश में हो रही है कि सिर्फ इस मोर इन दिल्ली एंड गुरुग्राम और इन मुंबई और पुणे? नाभा में क्या होता है about male sexuality? Sir, in cities like Nabha, yeah, if females are coming. I mean, to my surprise, वो आती हैं बोलती हैं डॉक्टर साहब देखो मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, इनका मन ही नहीं करता है. पहले तो करता था, अब ये बिल्कुल हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं पर इनका मन ही नहीं होता. आके कह देते हैं कि मैं थका हुआ हूँ या कोई ना कोई बहाना मार देते हैं, मेरे को हेडेक हो रही है. और जब भी हम करते हैं तो ही इज हैविंग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर ऐसे पहले ही इनका मतलब शीघ्र पतन हो जाता है. तो आप इनको इन्वेस्टिगेट करिए कि इनको क्या प्रॉब्लम है. पहले ऐसे नहीं होता था सर. नाउ फीमेल्स आर कमिंग. पहले उल्टा होता था कि मैन यूज्ड टू कम विद देयर वाइफ्स कि मेरी वाइफ को देखो क्या प्रॉब्लम है, कि इसकी सेक्स की इच्छा ही नहीं होती है. नाउ इट्स अदर वे अराउंड. सो दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग इन मेन आल्सो. ब्यूटीफुल. तो आपने एक बिल्कुल एक दुखती रख पे हाथ रखा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, छोटे शहरों के अंदर भी जो कि टियर बी सिटीज हैं वहां पर भी ये प्रॉब्लम है. यस यस सर. फैंटास्टिक. थैंक यू डॉक्टर रीना फॉर ब्रिंगिंग दिस फॉरवर्ड. सो नाउ जितने हमारे साथ हमारे भाई दोस्त जुड़े हुए हैं आज और बहनें जुड़ी हुई हैं, अब हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का एक छोटा सा रिदम और इसके थ्रू हम जानेंगे क्या क्या सवाल हमारे माइंड में उठते हैं और उनको हम कैसे टैकल करें. ये जो आज का जो विषय है ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, देयर आल्सो फॉर द पेशेंट्स एंड वाइस वर्सा. We all have to handle men with a lot of sympathy and compassion. So with this, I hand over the mic back to you, Dr. Reena. Over to you. Now we will start with your queries. Thank you so much. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर पेशेंट्स के लिए एंड ऑल माय कोलीग्स सबके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, यू बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, सो व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन? हम किसको कहते हैं? मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है? इसके क्या कॉजेज हैं? और अगर किसी मरीज को, जैसे कि मेरे पास ये Yes. So the male sexual dysfunction, whenever there is a disturbance in the sexual outlook of a man, it is called male sexual dysfunction. और आपको जान के हैरानी होगी कि शायद फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है. फीमेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बड़ी शायद पकड़ में नहीं आती है. yes, तो sir. मेल में प्रॉब्लम है जब उनका एक जो रूटीन क्रिया है टू हैव सेक्स और संभोग करने की जो जो फीलिंग्स अगर कम होती जाती हैं, इसे हम कहते हैं मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन. डिसफंक्शन का मेन मतलब तब निकल कर आता है जब एक दंपति, वाइफ एंड हस्बैंड टुगेदर, दे एग्री टू ए प्रॉब्लम नंबर वन, एंड दैट इज कॉजिंग नॉट ओनली द सेक्सुअल एक्टिविटी डिसफंक्शन बट ऑल्सो देयर माइंड. जब उनका दिल और दिमाग विचलित हो जाते हैं, when they are worried about a particular thing, and along with that they're having a dysfunction, it is called male sexual dysfunction. मैंने वो एक एग्जांपल दिया था यंग लड़के के बारे में, मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्र मेरे पास में आए थे. उन्होंने बोला कि वो पोर्नोग्राफी देख देख के अभी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. वो they go to that comparison mode and then probably they don't have a contact. So याद रखिए कि
किस मात्रा में डिसफंक्शन है, ये मात्रा कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई है। हम यस सर। सब्जेक्टिवली बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि 2 + 2 = 4 होता है। यस यस यस। 1 + 2 can become 10 if the mind is not at ease. And some couples can accept it better, but there can be a problem with sleep. तो 3 तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं स्तंभन दोष और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यस सर। सेकंड प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, इसे कहते हैं शीघ्र पतन। और सबसे बड़ी चीज है उसे कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। जब वो कपल या आदमी आपने बड़े अच्छे से बोला कि वो दे सो टायर्ड दैट दे डोंट गेट अराउज्ड, इसे रीना कहते हैं लिबिडो। एक लिबिडो अराउजल फैक्टर है, वही खत्म हो गया। यस यस। और क्या है कि इन तीनों की क्या डेफिनेशन है स्टिल डोंट नो, पर इतना बोला जाता है कि जब ऐसी प्रॉब्लम होती है एंड कपल फील्स दैट दे आर गेटिंग अफेक्टेड, हमने टाइमर लगाकर घड़ी के साथ मेजर नहीं करना होता है कि उनकी क्या क्या क्वांटिटी है टाइम की, संभोग की, हम नहीं देखते। तो दैट्स नंबर्स आई टॉक। बट अगर वाइफ अग्रीज एंड वाइफ फील्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मेन and men also agrees finally, then we label them as having a problem. In the olden times कुछ people said कि कुछ समय होना चाहिए 2 मिनट का, 3 मिनट का, दोनों तरफ। बट अभी डेफिनेशन ग्रे के अंदर है, and we say in case wife is complaining, which she should, and the husband is complaining, in that case we call it either an ED or premature ejaculation or lack of libido. अभी क्या है हमारे देश के अंदर, और किसी भी बड़े बहुत ये प्राउड की बात है कि हमारे देश के अंदर हम कोई भी दवाई कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, किसी कंपनी से कोई दवाई ऑर्डर कर लेते हैं, और लोग हमारे आर वेरी एजुकेटेड, तो कुछ भी दवाई खाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात वो जानना नहीं चाहते कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सो एवरीवन कम्स टू मी टू अ डॉक्टर, दे हैव टेकन द मोस्ट एडवांस्ड मेडिकेशंस ऑलरेडी फॉर। सबसे जो एडवांस मेडिसिन व्हिच आई गिव इट टू पीपल इज कॉल्ड एवेनेयर और एवेनाफिल। वो 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम की गोली खाकर आते हैं, और हम शुरू करेंगे वी मे स्टार्ट विद सिल्डेनाफिल, यानी कि छोटा बेबी ड्रग विच गॉट सम साइड इफेक्ट्स, और वी मे गिव देम टेनाफिल। बट व्हेन दिस पीपल कम टू अस दे हैव ऑलरेडी टेकन फॉर वीक्स अवानाफिल। बोले कि so patient would come कि हम देसी दवाई खा के आए हैं, we went to फलाना सेक्सोलॉजिस्ट, उसके इतने सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं इतने सालों से, और वो पुड़िया देते हैं, हमें पता भी नहीं होता क्या खा रहे हैं, वो क्या सॉल्ट ले रहे हैं। काला और चूरन खाकर आते हैं और अब कहते हैं हमें ठीक करो, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस माध्यम के थ्रू के जैसे हम दवाई खाते हैं तो टीबी का बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है, इट इज कॉल्ड एटीटी रेजिस्टेंस। सेम विद द मेन आल्सो डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू दीस tablet magic pills like Viagra, Tadalafil, Duloxetine. Men responding to them, गोली खाते कुछ होता ही नहीं है उनको। Probably they're not taking in the right format, the right way, right time, and then they're in a hurry to perform. जो जल्दी के गोली खाते हैं, परफॉर्म करना चाह रहे हैं और फेल हो जाते हैं, फिर शायद उनको थोड़ा सा डांट पड़ती होगी अपने पार्टनर के साथ, और फिर कोई दवाई काम ही नहीं करती। फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम कितना कुछ भी करें, बट दे गो इनटू अ लूप। दिस इज व्हाट वी गोना डिस्कस टुडे। दिस इज अबाउट मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये डेफिनेशन नहीं है, बट अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हमको मेंटली अफेक्ट कर रही है, देन इट बिकम्स ए मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। और एक चीज याद रखिएगा कि हर आदमी लाइफ के अंदर एक जैसा बिहेव नहीं करता। एवरी मैन may have ED or premature ejaculation at different times of their life, but that doesn't need any medication, and sometimes it will become fine, but when it continues for a long time
3 to 4 months, then I think they should come to a doctor and come to a doctor with their partners and their wives so that we can treat them better. Yes, sir. Over to you again. Yeah. सर आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि अगर हस्बैंड वाइफ कोई कपल ऐसे कंप्लेन करता है तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि हम किसके पास जाएं, हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, गायनेक के पास जाएं, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो दे स्टार्ट गूगलिंग, अल्टीमेटली दे वुड लैंड अप इन द हैंड्स ऑफ क्वैक्स। तो इसके बारे में सर प्लीज आप अब हमें बताइए कि whom they should approach and what should be the approach to examine that couple before giving any medication, हमें क्या करना चाहिए तो starting एक from चीज zero? एक चीज आपको बताऊं आप जी कि सर। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा टू लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पटियाला एंड आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम मैरिड लेडीज को कौन देखता है? आप देखती हैं कि यूरोलॉजिस्ट देखता है कि एंड्रोलॉजिस्ट देखता है कि क्वैक देखता है? कौन देखता है? सर वही गायनेकोलॉजिस्ट। आप ही देखते हो। अब गायनेकोलॉजिस्ट है ना एक तरह का ना एक यस सर अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, वो आदमी की तरफ बात ही नहीं करते हैं। एंड जब लेडी आती है डिलीवरी के लिए या बच्चा ना उसके लिए आती है, प्रॉब्लम हमारी बहन को हो सकती है। So never talk about the female partner at all, male partner at all. And then the right people to educate, and all these people are married. उनके घरों के अंदर उनके बेटे बच्चे हैं, उनके घरों के अंदर उनके शायद जो लेडीज आपके पास में आती हैं, फाइब्रॉइड निकाला बहुत बड़ा, उनका बेबी they've got a child at home, son at home, maybe they got a husband at home, maybe they have got a घर में कोई है कि आदमी है। अगर आप इनको ट्रेन करेंगे, इनकी तरफ जागरूक करेंगे, सो आई थिंक अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चीज करी। उन्होंने बोला एनीमिया मुक्त भारत, सबको गोली दे दो आयरन की। उन्होंने बोला मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उन्होंने बड़े बड़े अक्षय कुमार बड़े बड़े हीरोज को लाके एक सैनिटरी पैड को हर घर के अंदर लेकर आ गए। को समाज में जगह देने के लिए उन्होंने बोला कि हर घर टॉयलेट, उसकी मूवी बना दी गई। तो अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के साथ वुमेन के लिए कितना कुछ, उन्होंने बोला कि वुमेन चूल्हा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें छाती की बीमारी होती है। तो हम सब लोगों ने अपने घर के गैस सिलेंडर वापस कर दिए। उन्होंने बोला वापस करो, हमने वापस कर दिए। अब हर गांव के अंदर हर चूल्हा गैस चूल्हा है अभी। तो इसी तरह से हमको एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मिशन बनाना होगा। वो मिशन हम नहीं चला सकते, ये मिशन आप, जो आपकी गायनी सोसाइटीज हैं, जो आपके शहरों में जो गायनेकोलॉजी के फोरम्स हैं, वो डिसाइड करना है कि जब भी आपके पास एक स्त्री आएगी उसको इसके बारे में जरूर पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे और देखेंगे वो कैसे रिस्पॉन्ड। एंड ट्रस्ट मी रीना जी, out of 100 women encountered who are married, 70% may say that they have got a problem, because in male sexual dysfunction, the scale of problem is with the female, not with the male. Male अपने बारे में नहीं बता पाएगा, so the scale is with the female. अगर female partner कहती है there's a problem, then there's a problem. Do you understand? So ये हमारा ड्यूटी है, ये आपका ड्यूटी है कि अब तक जहां भी लोग जा रहे हैं, they're going to quacks, they're going to a urologist, they're going to an andrologist, they should not go. But the right people to treat them yes sir, not a urologist or an andrologist. आप पहले उनको डायग्नोस कीजिए, उनको जो आप उन्हें कंफर्ट दे पाएंगे वो उन्हें बाहर नहीं मिल सकता है। जब आपके पास में हस्बैंड आते हैं, बैठते हैं, गिव देम अ कप ऑफ टी, पानी पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, बात कीजिए, उनको एडम्स कोड शीट दीजिए, उनको शिफ्ट कोड शीट दीजिए, उनको इंटरनेशनल सोसाइटी की जो गाइडलाइंस हैं स्कोरिंग शीट दीजिए उनको, आप जो मैं सबको भेजता हूँ पढ़ने के लिए बोलता हूँ, दोनों को बैठ के कराइए। एंड यस ऑफ कोर्स आई कैन गारंटी यू दिस दैट एन एंड्रोलॉजिस्ट कांट डू मोर देन यू। जितना गूढ़ ज्ञान आपको है एक स्त्री का और एक आदमी का, वो एंड्रोलॉजिस्ट को नहीं हो सकता, बिकॉज़ एंड्रोलॉजिस्ट इज नॉट लुकिंग एट मेल, और ये बैरोमीटर तो फीमेल है, मेल तो है ही। आपके पास परफॉर्मेंस चेक करना है तो फीमेल चेक करेगी ना,
और वो हाँ, आपकी फीमेल से सहेली है, पूछना पड़ेगा। वो आपकी सहेली है, मेल यस सर। वो आपकी दोस्त है, तो दोनों को साथ में बिल्कुल। बैठाएंगे और हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगेगा कि मैडम ने मेरे को बुलाया, मुझे चाय पिलाई, उनके सामने बात करी उन दोनों के बीच में, क्योंकि उनको भी वाइफ डांटेगी नहीं। तो होता है कि वाइफ ने डांट दिया, वाइफ ने बोला तो छोड़, तो हस्बैंड ब्रेक्स डाउन। जब आप दोनों के हाथ पकड़ के मिलाएंगे और उन्हें बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ में हूँ, रीना इज विद यू, डोंट वरी, यस आप ये सर। दवाई यस you know सर। you will tell them so many things about you will be, I'm sure you'll be asking me यस more यस questions, यस सर। so then it will be magic। एक जादू की झप्पी आप दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता यस है। सर। Yes, when you need a penile implant, when you need something different, when you need a surgery, sometimes there can be a surgery, there can be phimosis, there can be some disease. Yes, we have to send to a endocrinologist. But for the routine work, I think you people are the best to look after the men who comes to you. So I think जादू की छड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए and not in hands of anyone else, because you are dealing with a couple. जितना यस एक्सपीरियंस सर। आप हैं उतना कोई नहीं ले सकता है। जागरूकता लेकर आना है, पार्ट ऑफ ऑल द बॉडीज, सुनाबा यस सर। गायनी सोसाइटी, पटियाला गायनी सोसाइटी के यस अंदर सर। आपकी बात फैलाएं, उसको लीड करें, फैलाना ही नहीं, लीड भी करना है, और पूरे देश को इस दिशा के अंदर आप लेके जाएं एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मैन डेफिनेटली सर। समवेयर। अगर आप, और ये भी बोलूंगा कि अगर आप अच्छे हैं तो सारे मन आपके पास पाएंगे और आप बहुत सारे लोगों का भला कर पाएंगे। यस सर। डन, आई एम डन सर विद योर एक क्वेश्चन। चीज, यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एनलाइटमेंट। सर एक मैं और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि कुछ पेशेंट्स कपल्स आते हैं, उसमें हस्बैंड का वेट होता है ओवर 140 kg, 90 kg, 150 kg, दे आर वेरी ओबीज, दो दे आर नॉट डायबिटिक एंड अदर हेल्थ प्रोफाइल इज नॉर्मल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतने ज्यादा वेट के साथ क्या उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट आता है इसका, और ये इसके बारे में सर आपको हमें एनलाइटन कीजिए सर। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा डॉक्टर। पहली बात कि जो मेल के शुक्राणु बनते हैं वो यस टेस्टिस सर। में, यस बॉडी सर। शरीर के बाहर होती है, जो एक आदमी की जो हम उन्हें टेस्टिस कहते हैं, कुछ कहते हैं गोली कहते हैं, सबके अपने अपने वर्ड्स हैं यस बोलने के। यस। तो मेरे काफी सारे जो जो हमारे आज जो लाखों में जो लोग हमें देखेंगे 2-3 दिन के बाद में, कुछ लोग उसे गोली कहते हैं, कुछ कहते हैं आदमी। यस सर। एक बदन का बाहर होता है और उसका टेम्परेचर यस कम सर। होता कम होता है। है। जब किसी का वेट बढ़ जाता है ना, सो वो वेट बढ़ने से पूरी टेस्टिस जो होती हैं उनकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाती है, नॉर्मल स्क्रोटम यस 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 यस। वो बीच में थाइस के बीच में आ जाती है, उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दे वर्क लाइक ए माइक्रोवेव ओवन। टेम्परेचर शुड बी 35 डिग्री 36 डिग्रीज, बट टेस्टिस साथ में आने से, ह्यूमिडिटी आने से, गर्मी होने से टेम्परेचर में इवन क्रॉस 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट कैन द प्रोडक्शन ऑफ द मेल हार्मोन्स। देखो यस हमारा पूरा बदन इज रन बाय सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स। एक स्त्री में हार्मोन्स होते हैं जो उसको फीमेल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड, यस दे आर सर। कॉल्ड एस्ट्रोजेंस। आदमी में जो हार्मोन्स होते हैं दे आर कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। दैट इज मेड फ्रॉम द टेस्टिस। यस जब इस सर। हार्मोन की मात्रा, अगर टेस्टिस गर्म होती हैं तो इनकी मात्रा कम हो सकती है एंड देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, नंबर 1। उससे द मैन कैन बिकम हाइपोगोनाडिन, एंड देन, और सेकंड अगर उसका वेट ज्यादा होता है तब वो संभोग भी नहीं कर पाते, ऑब्वियसली। यस यस, सर। बिकॉज प्रॉब्लम हो सकती है, पोजीशन प्रॉब्लम्स हो यस सकती हैं, यस यस सर। देन ही लूज हिज कॉन्फिडेंस आल्सो। But a very important issue here is that a large number of men who come to us nowadays are obese. So when they are obese, Dr. Reena, इनकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स की मात्रा है, जैसे आपके शरीर के अंदर द लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन आर हायर। सो जितने हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं आस में, वो उनको जानना चाहिए कि एक यस सर। स्त्री में हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, मेन में होता है टेस्टोस्टेरोन। सो आदमी के अंदर एक रेशियो होती है, जिसे कहते हैं रेशियो ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। रेशियो निकालें ना और उसको हम गुना भाग यस। करें तो रेशियो 10 से ऊपर होनी चाहिए। तो आदमी के अंदर मेल हार्मोन ज्यादा होने चाहिए और फीमेल हार्मोन कम होने चाहिए, राइट। यस यस अगर सर। किसी का पेट बढ़ जाता है तो जो उसका चर्बी आती है ना बदन के अंदर, खासकर पेट की चर्बी आती है,
that will make large amount of female hormones. तो वो फीमेल जो हॉर्मोन्स। रेशो को कम कर देता है। यस सर। तो मेरे जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, मेरे साथी, मेरे टीचर्स, पेशेंट्स, आपको जानना है कि टी बाई रेशियो करनी चाहिए इन एन यस सर। ओबीस मैन जिसका बीएमआई इज मोर देन 26-27। और अगर ये बीएमआई की रेशियो रिवर्स हो जाती है, बीएमआई में अगर हार्मोन की वैल्यू चेंज हो जाती है, सो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अदरवाइज द मैन will have sexual dysfunction. He will have erection problems. He'll have premature ejaculations, maybe. He'll have low sperm count. He'll lose the libido. He'll lose the libido. He won't have arousal, and such men are known to have problems. So, इंश्योर करना चाहिए कि जब भी कोई obese इंसान हमारे पास में आए, खाने की गोली नहीं देनी है, उसको पहले कुछ जांच करने हैं और फिर जो बॉडी में हार्मोन्स की वैल्यूज गलत हो रही है उन्हें ठीक करना है गोली देने के बाद में। उसके बाद उनके शीघ्र पतन या स्तंभन दोष का इलाज करना है। पहले करेंगे तो वो इलाज हो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं पाएगा। यस सर। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग नाउ। यस सर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपने भी शायद स्टार्टिंग में इसको उठाया था, ये परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये क्या है, ये क्यों होती है? जैसे अभी कभी हम एज अ डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं कि आपने क्या कभी मेस्टरबेशन किया था, तो हस्बैंड बोलते हैं कि यस हमने आराम से कर लिया था, हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, लाइक व्हेन वी आर प्लानिंग अ बेबी स्पेशली, तो हो नहीं पाता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी परफॉर्मेंस एंजाइटी है क्या? ये एलीट फैमिलीज में या आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों में, इंजीनियर्स में ये क्यों बढ़ती जा रही है? इसका कोई करियर से लिंक है, स्ट्रेस है, क्या है सर ये? मोबाइल फोन, यस too सर। much of information and too much of things they are exposed to. जो चीज नहीं देखनी चाहिए वो चीज वो देख पा रहे हैं, जिसके बारे में उनको नहीं पढ़ना चाहिए, दैट इज ए क्लिक अवे। उनके पास इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। जब यंग लोग होते हैं, दे हैव सो मच ऑफ ओवरलोड एंड दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक, दे आर ट्रैवलिंग, so they watch lot of things on the mobile phone. As a result, इनके मापदंड चेंज हो जाते हैं। They want some perfection. और स्टिमुलेशन का जो एक अगेन फोटा दिखा रहा हूँ मैं आपको आज, वो बढ़ जाती है। और when they get married, when they get a partner, they go into that comparison mode. और एक जंग शुरू होती है। जो एक इंसान उसको लगता है कि वो बिल्कुल इनविंसिबल है। When it comes to a woman जहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है because he is comparing things in his mind, number one. Yes sir. Perform. So then he will get once or twice, thrice is okay. वो अपना इलाज भी नहीं कराता है because उसकी ईगो बहुत बड़ी होती है ना हमारे आदमी में। Yes sir. मेरे में भी अहंकार बहुत ज्यादा है। हमारे अहंकार होता है आदमी के अंदर, अहंकार ज्यादा है, प्रॉब्लम है, बात भी नहीं करनी, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रहा, तो फिर इसी फुट्टे से पिटाई भी होती है। एंड दैट पुट हिम इनटू ए नेगेटिव लूप। वो घबराता है, अभी वो घबराता है कि जब भी जाएगा नहीं कर पाया तो क्या होगा। एज ए रिजल्ट ही विड्रॉस, कॉल्ड परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। जब वो परफॉर्म करने के लिए, संभोग करने के लिए वो करना तो चाहता है, he's getting around also, he's getting libido also, but जब परफॉर्म करने का टाइम आता है तो within, this is typical। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, he said I am absolutely fine, but the moment जब समय आता है then I cannot do it, I withdraw। ये तीसरा केस था इस हफ्ते का। जिन लोगों हम जो किसी के बारे में बताते हैं तो हम एक उनका जो मानसिक तनाव है उनकी बात कर रहे हैं, तो प्लीज वी शुडंट फील कि हम किसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, भी हम एक मानसिक तनाव की बात कर रहे हैं। तो दैट इज एंजाइटी। और जब 3-4 बार हो जाता है देन ही विथड्रॉस फ्रॉम हिज वाइफ एंड देन ही इज नॉट एबल। सेकंड, इसकी प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं एज एन आईयूआई और आईवीएफ डॉक्टर्स। हम उन्हें गोलियां खिलाते हैं और टीके लगाते हैं, फिर कहते हैं भैया रात को 10 बजे से कल 3 दिन के लिए साथ में रहना। लगाने के बाद में या बोलेंगे आईवीएफ होना है, आके सैंपल दे दो। वो बेचारा सोचो एक नए वातावरण में जाके वो सैंपल देने
करते हैं, या कहते हैं अगर 3 दिन के लिए आप साथ में रहिए। आई थिंक आयरॉनिकली ये हमारे कैसा स्पेशलिटी है, जहां पर भी टेल द पीपल टू बी इन कांटेक्ट बाय राइटिंग ए प्रिस्क्रिप्शन कि आप 3 दिन तक साथ में रहिए। आई थिंक वी आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन डू दिस। सो Yes, sir. जो हमारा पेशा है, जो हमें ट्रेनिंग दी गई है, वी आर ऑल्सो रिप्रोडक्टिव biology specialist. We have Yes, to sir. take care of the little girls and boys who come to us. So Hmm. we do right now. आप 3 दिन तक साथ में रहिएगा। वो कहता है क्या, मतलब कि देखो क्रेजी, and then they are not able to perform at home. Then we get so scared, and when they come to give a sample for IUI or some other procedure, एक नए वातावरण में जाके वो सैंपल नहीं दे पाते हैं, because for any couple ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट एक बहुत ही प्लेजेंट ये बहुत ही प्लेजेंट सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। Yes, When we sir. tell them to do it, they can't do it. They can't. ये बच्चों को बोलो कि तू ये करेगा वो करेगा, तो कभी नहीं करेगा, वो हमेशा उल्टा काम करेगा। तो यहाँ पे होता है, so they are not able to perform because when they are told to perform, that is the biggest problem there, and then they have anxiety, and then they are not able to do it. एंग्जाइटी परफॉर्मेंस के अंदर हमारा बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पर हम लोगों को कंफर्टेबल नहीं करते हैं। हमने कंफर्टेबल, अब देख लीजिए ना, अगर आई डोंट नो व्हेन यू गो टू सम सीमेंट कलेक्शन रूम, गंदे गंदे रूम्स होंगे, कुछ वहाँ पे कुछ एड्स नहीं होंगे, वॉशरूम नहीं होगा, एक पंखा चल रहा है, सैंपल दे दे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। Yes. अगर कभी वाइफ ने डांट दिया, और आजकल वाइफ की बात करूंगा, आजकल खूब सारे हमारे पास कपल्स आते हैं और अनमैरिड, दे आर टुगेदर। आई एम श्योर कि पंजाब में भी ऐसा होता होगा, समटाइम्स द गर्ल्स से गेट देयर बॉयफ्रेंड्स टू अस, Yes, कहते हैं ये sir. परफॉर्म नहीं करता, दे आर द Yes. पार्टनर्स, Yes, sir. परफॉर्म नहीं करता, तो पकड़ के लाती हैं बेसिकली। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी और बुरी बात, हमारी वुमेन आजकल आदमी से आगे चलती है। दिस इज thanks to our Pradhan Mantri ji. I think it's a big thing which our government has done. Women have become more glamorous. Women have become more independent. और वो किसी की चिंता नहीं करती। Rightly so. Women have to be bigger than the men. तभी उनको माँ बोला जाता है। So जब एक वुमेन इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो अपने आप से ही सक्षम है, अभी वो आदमी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो सवाल जवाब भी। पहले वुमेन raise a voice because she was dependent upon the man, but now Yes, sir. women better than the man. जहाँ पर भी एक स्त्री और आदमी सामने आएंगे ना, तो आदमी को झुकना ही पड़ेगा। वुमेन के अंदर जो एक एनर्जी है काम करने की, वो कभी भी आदमी मैच नहीं करता उसके साथ में। वो शार्पर, दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर फाइनेंशियली मोर साउंड। आप खुद भी देख लीजिए कितना पूरा घर का खर्चा आदमी चलाती है। Yes, sir. women have also become demanding. जो ये प्रॉब्लम मैन की हो रही है, तो वुमेन आर ऑल्सो लाइक द मेन ओनली, दे आर ऑल्सो वाचिंग थिंग्स, Yes, sir. उनके मापदंड बढ़ते जा रहे हैं। वो भी बात करती हैं, नेट पे देखती हैं। अगर आप देखें गूगल पे जाकर, कितनी ऐड दिखेंगे कि वुमेन आर टॉकिंग अबाउट, वीडियोस बना रही हैं, वो गोलियां बेच रही हैं कि मैंने Yes, sir. गोली ऑर्डर करी, नाउ इज एबल टू। सो वुमेन, तो मैन दवाई गोली Yes. ऑर्डर नहीं कर रहा मोबाइल फोन पे, वुमेन ऑर्डर कर रही है। Yes, sir. चूरन मंगवा लो, माय हस्बैंड परफॉर्म बेटर, ये सब गूगल पर है, ये मैं क्रिएट नहीं कर रहा। Yes, sir. Yes, sir. No, you are very right, sir. वुमेन्स कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड के लिए वो गोली मंगवा ली, वो अच्छे से मेरा देखभाल कर। तो आपको जानना है कि वुमेन इज आल्सो टू सम एक्सटेंट ए कल्प्रिट। अभी हमारा सोसाइटी ट्रांसलेट कर रही है ना, दे गॉट एम्पावर्ड, वो डिमांड करने लग गई है, और हस्बैंड बेचारा वो थोड़ा सा डांट खा रहा है, तो दैट कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ एंग्जायटी। मेरे 3 Yes, चीजें sir. मेरे कि मैंने बताई आपको। Yes, sir. But I always tell my patients, sir, कि हस्बैंड वाइफ गाड़ी के 2 पहिए हैं, आगे नहीं चलो, साथ में चलो, पीछे भी मत चलो, आगे भी मत रहो, बस साथ में चलो। हाँ, ये तो है, पर साथ में चलने में प्रॉब्लम हो रही है ना आदमी को। वो तो एक स्त्री को, ही केप्ट ए वुमन लाइक ए स्टेपनी। Yes, sir. वुमन नॉट ए स्टेपनी, वुमन इज द इंजन। और जब Yes, तक हम sir. वुमन को इंजन नहीं बनाएंगे गाड़ी का, इंजन आगे रहता है गाड़ी का। अगर हमने वुमेन को इंजन नहीं बनाया गाड़ी का, तो कभी भी हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। हाँ, ये वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। आप फिनलैंड देख लीजिए, आप नॉर्वे देख लीजिए, वुमेन आर द पीपल, दे हैव टू लीड।
वुमेन को तो आगे आना ही आना है और मेन को पीछे। यस। उनकी जो जगह है वुमेन को हमने समाज में देनी है, जो छीन ली गई थी उसको देना है हमने इंडिया के यस अंदर। सर, यस सर। थोड़ा सा वुमेन को भी थोड़ा शांत होना चाहिए और वुमेन को भी हर ताकि उनको अ, आपके पास में लाना चाहिए। दे शुड गेट यस देम टू सर, यू, देन यस सर। स्कोल्डिंग देम, स्कोल्डिंग देम इन द बेडरूम, दे शुड ब्रिंग द मेन टू यू एंड आस्क क्या करें। बोलेंगे दीदी बताएं हम क्या करें। दीदी कहती होगी ना, काफी सारी लेडीज बोलेंगे दीदी क्या करें बताओ, डॉक्टर दीदी, दीदी, डॉक्टर। क्योंकि दीदी क्या करें बताओ। हाँ सो जी। ये आपका फर्ज है थ्रू योर गायनेकोलॉजी सोसाइटी इज एवरीवेयर, टेक दिस थिंग टू आशा दीदी वर्कर्स, टेक इट टू आंगनवाड़ी वर्कर्स, और उनको ये नहीं बोलना कि हस्बैंड को लेकर आना, उनको सिर्फ उनको बताना कि ऐसा होता है, और अगर कहीं हो तो हमें बता देना, so then they should get the patients to you so that they need help। यस सर। पता या। ही नहीं किसका इलाज है ना। यस और सर, यस। I think all the women should look at men with more of not passion and compassion but empathy। The man is breaking down, so एक आदमी एक शीशे के जैसे बिखर रहा है इस समय। So I think can hold up। और एक बार शीशा बिखर गया तो रीना, अगर एक बार शीशा चटक गया, शीशा शीशा जुड़ता नहीं है। So I think यस सर, it's your duty to look after the man। यस सर, Okay, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। next। सर एक और इसी लाइन पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पेशेंट्स कई बार आते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, अराउजल उनका नॉर्मल होता है, सेक्स करने की इच्छा भी होती है, बट दे हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो उसके क्या रीजंस हैं, वो क्यों होता है पेशेंट्स के साथ, और उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? हमारे पेशेंट ना यंग होते हैं, हमारे पेशेंट्स होते हैं टिल अराउंड 40-45 ईयर्स ऑफ एज। ये मैन हमारे पास में आते हैं इन आवर यस सर। प्रोफेशन, और दे कैन बी एल्डरली आल्सो, दे कैन बी यंग आल्सो। तो यस याद सर। रखो जो कॉमनेस्ट कारण होते हैं ना, इसके डायबिटीज होगा, हार्ट डिजीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, ये कुछ बीमारियां हैं जो ये प्रॉब्लम कॉज करती हैं। परंतु इन आवर पॉपुलेशन द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल। They have got psychological issues which are leading to, then it can be primary or secondary। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, जो शुरू से ही था, यस विवाह सर। से पहले ही था और पार्टनर को मिलने से पहले था। और सेकेंडरी हो क्योंकि पहले नहीं था, अभी अभी क्रिएट हो गए। इन आवर प्रोफेशन इट इज मोर ऑफ नॉट डायबिटीज, नॉट हाइपरटेंशन, नथिंग मच, नो ड्रग इनटेक, बट इट इज ड्यू टू साइकोलॉजिकल। जब मैन बेचारा इतना बोझे में जी रहा है, यहाँ मीटिंग वहाँ लैपटॉप, ये करना है, घर में आके सब्जी भी लेकर आता है आजकल वो, घर में आके किचन के अंदर भी हेल्प करता है हर तरफ, यस, और यस, यस। उसके बाद परफॉर्म नहीं, आउट ऑफ स्ट्रेस परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल इन आवर पॉपुलेशन। परंतु अगर आप एल्डरली वुमेन में देखें, एल्डरली मैन में देखें, तो इट कैन बी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और सम अदर यस सर। डिजीजेस टेक्स। बट आई थिंक, आई फील कि अगर हमें ऐसा कारण समझ नहीं आता है, ऑल्सो गो फॉर कंप्लीट कार्डियक चेकअप। I यस even सर। order for TMT, मैं TMT भी चेक कराता हूँ। आई डू पेनाइल डॉपलर्स ऑल्सो, जहाँ पर हम उनके पेनिस में, उनके गुप्तांगों के अंदर ब्लड सप्लाई कैसा है, क्लॉट तो नहीं है, थ्रोम्बस, तो मैं वो भी चेक करता हूँ। आई ऑल्सो डू पेपावेरिन टेस्ट। सो वी डू मेनी थिंग्स, बट हमको व्हाट दे नीड इज सिंपैथी एंड कंपैशन एंड एम्पैथी। बड़े बड़े यस। इलाज में काम नहीं आते हैं। एंड मेनी टाइम्स आई फाउंड दैट इन माय कैरियर आई हैव सेंट 3 पीपल फॉर पेनाइल इम्प्लांट ऑल्सो, तो वो भी करना पड़ता है हमको, पेनाइल भी इम्प्लांट करने पड़ते हैं। यस So सर। the common problem is psychological, which a couple themselves can handle। You can't tell the Reena कि तू परेशान है, मन को शांत कर और जाके ओम विलोम कर या मेडिटेशन कर। वो क्या करेगा? यस। ऑफिस में जाता है तो बॉस डांटता है, घर में यस आता है सर। वाइफ डांटती है। बीवी डांटते हैं। एक लड़का मेरे पास में आया, एक लड़का मेरे, और बीवी तो ठीक है, बीवी तो ठीक कह रही है, तो उसको आपके पास में आना चाहिए, बीवी को आपके पास में लाना चाहिए। तो मेरे पास बहुत ही एक यंग लड़का आया, 33 ईयर्स का, again a resident of Gurugram, because my clientele is all over Gurugram and Delhi होते यस हैं। सर, यस सर। ये लड़का को मैंने बोला तुम क्या काम करते हो? मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, इन लिविंग इज जॉब। आई सेड जॉब क्यों छोड़ रहे हो? ही सेड कि सर थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा जॉब के अंदर। तो बाद में पता चला जब मैंने उनको वार्तालाप किया, ही नॉट एबल टू परफॉर्म एंड इट कम टू मी फॉर स्तंभन दोष, फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एंड अपने ऑफिस में मेरा बॉस परेशान कर रहा है, घर में जाता हूँ तो मैं आंख नहीं उठा पाता हूँ। एज ए रिजल्ट मैंने नौकरी छोड़ दी।
आई लेफ्ट माई जॉब ओनली, आई कांट टेक, कहते हैं कांट लीव माई वाइफ, आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई कांट टेक द होल डे। कहते हैं मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि आज किस बाबे के पास में जाऊं, आज किस डॉक्टर के पास में जाऊं, क्या दवाई खाऊं। तो मैंने कहा मेरे पास कैसे आया, कहते हैं इंटरनेट पे देखकर आपके पास में आ गया। मैं कितने डॉक्टर के पास गया अब तक, कहते 6 के पास में गया हूँ। और वो 6 के पास में गया, 7 मैं था, तो मेरे पास में भी आ गया और भी जुड़ गया मेरे साथ। These are common issues which people have. They don't know where Yes, to sir. go because हमारे देश के अंदर हम कभी मना नहीं करते। Doctors, they may not be qualified, but they don't say no. Yes, Then they sir. can't treat, and they keep giving some medications अपने दिमाग के अनुसार। और एक बहुत ही एक ये सेंसिटिव सा डिपार्टमेंट होता है। आई थिंक Yes, sir. until you're not trained in this, you should not be offering medications. And Yes, training sir. only takes around, I think, 1 week or so, not more than that, to understand a man. So I think Yes, sir. times are changing, and you people sitting all over the country will take charge and lead the men to better future and happier men you can create. Yes, sir. We have learned a lot from you, sir. I have started examining the mail and all, everything. सर एक Good. और बात बताइए मुझे कि जो पेशेंट्स में आता है या वाइफ आके कंप्लेन करती हैं कि मैम हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं पर इनको लाइक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन जिसको हम बोलते हैं। सो इसके क्या रीजंस हैं और हम इसको कैसे टैकल करें पेशेंट्स को? ये बहुत ये लोगों का सारा क्वेश्चन है सर हाँ, पब्लिक में। ये पता क्यों होता है, ये पता क्यों होता है? When the penis becomes extremely sensitive to the touch. तो सबसे पहले पहला जो पार्ट, 5 पार्ट होते हैं, हमने हमेशा सबको बताता हूँ। पहला पार्ट है अराउजल का। यस सर। जब अराउजल आता है तो फिर देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट doing something, looking at the partner, looking at the wife, or looking at any whatever he sees on the mobile phone. The second part is the erection part, जहाँ पे he's got the penis becomes hard, more blood supply goes there but doesn't come out. Blood यस तभी सर। तो become harder. Third part is the when so he's got erection. The third part will be the orgasm and ejaculation. They both Yes. occur nearly back to back. And then fourth, this is called a plateau part. And the fourth part is resolution, जबकि वो हो गया है, things gets over. यस सर। Now आपको ये जानना है कि जब भी penis, there may be problems like diabetes which can lead to such problem, or there can be hypersensitivity of the penis to the thoughts or female skin. जब उसका मन शांत नहीं है, some hormonal imbalance or he's having diabetes, common things, the moment he touches, the penis touches the skin, he ejaculates. The normal the pattern of Stambhan dosh, they say 1 to 2 minutes should be the period of penetration. 1 to 2 minutes, maybe 3 to 4 minutes. But less than 2 minutes or 1 minute, they say there can be erectile dysfunction. And same thing occurs in premature ejaculation. In case he ejaculates within half a minute or 1 minute of here, they have an erection, but they get very quick orgasm. And before they're able to penetrate, they have had their orgasm and they ejaculate. ये इसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट होता है from स्तंभन दोष. The treatment of erectile dysfunction is very different from premature ejaculation. And Yes, in sir. premature ejaculation, we have to give them SSRI inhibitors. So we give them depoxitin. ओके। यहाँ पे हमने देनी है depoxitin और वहां पे हमने देना है sildenafil, tadalafil या फिर यस सर। Sildenafil. So ये ट्रीटमेंट डिफरेंट है. So डॉक्टर्स को ना इन चीजों में फर्क नहीं समझ में आता. उनको लगता है सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वियाग्रा दे दो या tadalafil, तो उससे वो चीज काम ही नहीं करेगी. Here they have to be given something called depoxitin. और ये भी देखा गया रीना के ये कॉमन प्रॉब्लम दोनों में आती है, यानी कि मेल के अंदर दोनों चीजें होंगी. तो सबसे जरूरी चीज तो ये है कि उसके दिमाग के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड ही शुड बी अराउजल. अगर अराउजल ही नहीं है तो फिर कुछ आगे लिबिडो नहीं आएगा. यस 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 यस। अगर प्रॉब्लम दोनों आ रही है, देन वी हैव टू गिव देम अ कॉम्बिनेशन ऑफ depoxitin and tadalafil. So both the pathologies are being looked after. So ये चीज हमें समझनी चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड, गेट ट्रेंड कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है और हमको उस चीज का इलाज कर रहा है. एक आपको कपल के बारे में बताता हूँ. एक कपल बहुत ही, अगेन
हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं ना, हमारे साथ जब हम IVF इनफर्टिलिटी में लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ। यस यस सर। तो प्रॉब्लम था, छोटा सा प्रॉब्लम था, मैंने ऐसी कुछ गोली खाने को दे दिया। अब गोली खाते थे और उन्होंने बोला कि कुछ हो नहीं रहा। कहते इट शुड हैपन इन यू, व्हाई इज नॉट हैपनिंग। कहते सर हम तो देखो शाम के टाइम अच्छे से खाना खाते हैं, मतलब वी हैव आवर लंच और डिनर एट अराउंड 7 o'clock, दोनों मिलके मंदिर में पूजा करते हैं, हम दिया जलाते हैं घर में, फिर हम गोली खाते हैं। ओके, ब्यूटीफुल। अब तीनों चीजें गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खाना खाने के बाद में गोली खा रहे हैं तो गोली काम ही नहीं करेगी, दे हैव टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक। बिल्कुल। उसके बाद वो लोग बहुत ही बेहतरीन अच्छे इंसान हैं, वो घर में दिया जला रहे हैं, कुछ तुलसी पूजन कर रहे हैं, तो उनका माइंड इज समवेयर एल्स। देन यस वी यस। मेडिटेशन टू हैव अराउजल। अराउजल करने के लिए उनको एक प्रोसेस को करना पड़ेगा। अगर अराउजल ही नहीं होगा तो कोई गोली काम नहीं करेगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव यस टू यस। काउंसलिंग। सो डॉक्टर करीना, उन्हें काउंसल करना है कि अराउजल इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस सर। erection and premature ejaculation is your responsibility। कहने का यस मतलब एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। arousal उस दंपति की प्रॉब्लम है, हाँ। और उनको स्तंभन दोष ना हो और उनको शीघ्र पतन ना हो, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीना, बाय गिविंग देम सम टैबलेट्स। यस सो सर अगर एब्सोल्युटली। मिसमैच हो गया तो बात ही नहीं बनेगी। अब गोली खा बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। घर रात शाम को खा लिया उसने, बिरयानी खा ली और साथ में मटर पनीर और 2 परोठे खा लिए, और फिर गोली खा ली, तो गोली काम ही नहीं करेगी। तो काम ही नहीं करेगी वो। यस काम ही नहीं करेगी। फिर एब्सोल्युटली। नहा धो के वो बैठे, अराउजल कहाँ से आएगा? बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेडिसिन से वर्क। अगर आप सोचिए, एग्जांपल दूंगा, अगर आप घर में खाना बना रहे हैं और आपके घर में चूल्हा ही नहीं है, तो क्या आप चावल पका पाएंगे? क्या आप चपाती बना पाएंगे? तो एक एक हीट जनरेट करनी जरूरी, जिसे हम कहते हैं अराउजल। दिस इज वेरी यस सर। ये काम गायनिक्स का है, ये काम डॉक्टर्स का है, उनको इस चीज के बारे में गाइड करना। क्योंकि ये हमारे जो साथी हमारे पास में आते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इन्हें पता ही नहीं क्या करना है एक्चुअली, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो दवाइयों के बारे में सिर्फ दवाइयां लिख के देना जरूरी नहीं है, उनको दवाइयों के बारे में जानना जरूरी है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। यू हैव टू होल्ड देयर हैंड्स and pledge to take their responsibility. Only then they will benefit. Yes, sir. सर इसी लाइन में मैं एक और क्वेश्चन, मे बी वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बहुत सारे आज के मेन है यंग एज में, दे स्टार्ट गोइंग टू जिम्स एंड दे स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स, और कई बार उनको पता भी होता है कि मसल बिल्ड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। समटाइम्स दे जस्ट टेक प्रोटीन पाउडर्स, उनको पता भी नहीं होता कई बार, बट इट इज मिक्स विद टेस्टोस्टेरोन। तो उसका उनकी बॉडी पे और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में आफ्टर मैरिज उसका क्या इफेक्ट हो सकता है सर? व्हाई इट इज डेंजरस नॉट टू टेक? There are two things about gyms. दो चीजें हैं इसके। जी पहली सर। बात, we'll find that a lot of these young men who come to us nowadays at 35, they are full of muscle and Yes, tattoos, tattoos. biceps, tattoos and muscles. But unfortunately क्या होता है कि आफ्टर मैरिज जिम बंद हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं घर की। तो वेरी ट्रू। इस घर में एक भारतीय महिला जब आती है तो बहुत प्यार के साथ अच्छे से खाना खिलाती है उनको, तो उनको माँ का भी प्यार मिलता है और घरवाले का भी प्यार मिलता है, तो खा करके वो मोटा हो जाता है। Yes, sir. सो जो लोग पहले जिम जा रहे होते हैं, दे स्टार्ट जिमिंग, सो उनकी पूरी बॉडी में एकदम से फैट डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो दे स्टार्ट डेवलपिंग ओबेसिटी। बॉडी इज ट्यून्ड टू दैट हाई मेटाबॉलिक रेट, तो वो हो नहीं पाता, और खाना खा रहे हैं दबा के, सो एज अ रिजल्ट दे ऑल गेन वेट वेरी क्विकली। सो व्हेन दे वेट गेन वेरी क्विकली, they are the people who are bound to have reversal of testosterone to estradiol ratio, T by ratio. Yes, sir. नंबर दो क्या होता है? नंबर दो होता है ऐसे केसेस के अंदर कि व्हेन दे टेक सम सप्लीमेंटेशंस, एक कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है। So in case they take large amount of supplementation like testosterone, they won't allow the testosterone to form only, वो suppress कर देगा testosterone को। Yes. और suppression होता है, then he won't get arousal nor he will get
proper libido, and neither he'll have good erections. So ये दवाइयाँ खा के मसल तो बनती है, यहाँ की मसल तो बन जाती है, परंतु जो उनके गुप्तांग होते हैं, जो उनका पेनिस है, टेस्टिस है, दे गो अंडर सप्रेशन. Separation. समथिंग लाइक अगर हम एक छोटे से कपड़े के अंदर डालें मिट्टी का तेल, चिंगारी दिखाएं तो क्या होगा? वो जल पड़ेगा. जल पड़ेगा. यही काम है टेस्टोस्टेरोन का, जिम के पाउडर्स का, पूरी टेस्टिस को बंद कर देते हैं. ये रिवर्सिबल है, बट रिवर्सिबिलिटी में 6 महीने लगते हैं. एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो पकड़े उन चीजों को, उससे पहले उनको हमारे पास में आना चाहिए. और 6 महीने में अगर उनके साथ वाइफ या पार्टनर है, डैमेज हैज बीन डन, बिकॉज वो हीन भावना में चले जाते हैं. मैंने बोला आज की जो साइकोलॉजी है वो कांच के जैसे होती है. Once shattered, it will never come up again. So अगर 5-6 महीने में परफॉर्म नहीं कर पाया, मसल तो बना लिया, कुछ ताने सुनने को मिल गए, फिर कहीं ढूंढता ढूंढता वो डॉक्टर रीना के पास में गया, बेस्ट आईवीएफ डॉक्टर ऑफ नाभा पटियाला आपके पास में आया, आपने पकड़ लिया, आपने इलाज किया, 8 महीने लग गए, तब तक डैमेज हो चुका होता है. फिर वो हीन भावना उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी से बाहर ही नहीं आने देती है. यस यस. सो देन हम कह रहे हैं ना कि हम पहले तो आग लगा रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं. तो बेस्ट थिंग इज दैट यू पीपल एंड मी इंक्लूडेड शुड बी एबल टू हेल्प पीपल बिफोर हैंड ओनली. इसकी अगर हम जागरूकता क्रिएट करेंगे तो नौबत कभी आएगी ही नहीं. बट सवाल बड़ा अच्छा था. टेस्टोस्टेरोन कैन लीड टू दिस जिम सप्लीमेंट्स कैन लीड टू दिस प्रॉब्लम, like having low sperm count and having sexual dysfunction, and along with that, even without that, जो अच्छा वाला आदमी भी जो जिम जाता है, जिम जाना बंद कर देता है और वेट गेन करता है. रिवर्सिबिलिटी बाय एज, 2 कारण होते हैं और दोनों रिवर्सिबल है. अगर हम ठीक से गाइड करेंगे तो उनको. दैट्स ऑल. यस सर. सो अभी रिसेंटली मैंने अपनी करियर में देखा है कि आई गेट लॉट ऑफ मेन विद इनफर्टिलिटी, प्राइमरी और सेकेंडरी, विद लॉट ऑफ टैटूज ऑन देयर आर्म्स. तो चंडीगढ़ में सर बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं, बहुत सारे ब्यूटी रेस्टोरेंट्स हैं, एंड जब हिस्ट्री लेते हैं तो दे आर बाउंसर्स ओवर देयर. तो वो जिम जाते हैं तो अल्टीमेटली हिस्ट्री निकलता है कि दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स. तो मुझे लगता है कि टैटूज जिसके भी ऊपर हो, जिस भी मैन के ऊपर टैटू है, हिस्ट्री ये जरूर ले लो उनसे. एक्चुअली जल्दी में रहना. जो टीचर्स हैं, जो उनके जो कोचेस हैं, जो जिम कोचेस हैं, दे वांट टू गिव देम ए क्विक मसल मास. तभी तो उनकी इज्जत होगी. तभी तो फिर एक कोच चार्जेस समवेयर half a lakh. यस यस सर. अमाउंट. सो अगर अच्छे से मेरा बॉडी का मसल मास बन गया, सो दे वांट टू मेक मसल मास, उसके लिए दे हैव टू गिव एंड्रोजेंस. मैं ये नहीं कह रहा कि सब देते हैं, बट लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गिविंग. तभी तो प्रॉब्लम आ रही है ना. यस सर. ये क्या होता है, ये जो मैचो मैन टैटूज बनवा लिए, मसल बन गए, शाम को फिर वो दे आर लाइक बाउंसर्स और दे आर बाउंसिंग एट because they are driving थार चला रहे होंगे, चला रहे होंगे. तो शाम को बैठ के वो 2 ड्रिंक भी लगा लेते हैं लड़के, because now they become powerful. शाम को 2 ड्रिंक भी लगा लेंगे, फिर maybe they'll have a cigarette also. पूरा शरण है ना. इसका मतलब होता है आग तो लग गई, ऊपर से और मिट्टी का और यस. ये चीजों का एजुकेशन देना बड़ा जरूरी है, और ये एजुकेशन के लिए आई थिंक ये तो आपको ही करना पड़ेगा. यस यस एब्सोल्युटली करना पड़ेगा, और सबको जागरूकता जगानी पड़ेगी कि हम मिलके काम करें. यस सर. यस सर. सर एक और जो लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इसके ऊपर सर आप थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज. एंड इसका जो इनफर्टिलिटी के ऊपर या फर्टिलिटी के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है, प्लीज टेल अस अबाउट दिस. जब इजैकुलेशन होती है ना, वो सामने की तरफ होनी चाहिए. यस सर. कहते हैं एंटीग्रेड, यानी कि वो एंटीग्रेड. अगर ये मेल ऑर्गन है तो वो इजैकुलेशन होनी चाहिए आगे की तरफ, होल फ्रॉम फ्रंट, एंटीग्रेड. बट किसी कारण से क्या होता है कि जब शुक्राणु इसमें आ रहे होते हैं पेनिस पे, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसे ब्लैडर कहते हैं. ब्लैडर के अंदर जो ब्लैडर की नेक होती है, गर्दन होती है, वो वीक हो जाती है. तो शुक्राणु आगे जाने की बजाय वो पीछे चले जाते हैं. दे गो टू द यूरिनरी ब्लैडर. एज ए रिजल्ट आगे सीमेन आता ही नहीं है,
वो पूरा बेडरूम में जाता है. दैट इज Yes, sir. कॉल्ड रेट्रो. रेट्रो मतलब पीछे. Picture. देखा होगा ना, बहुत सारी मूवीज आती हैं रेट्रो बॉलीवुड मूवीज, जो मीना कुमारी Yes, yes. और राजकुमार की मूवीज हैं, वो रेट्रो Retro मूवी. look, retro movies. रेट्रो मूवी तो देवानंद के साथ पफ निकाल के चलना, Yes, और yes, yes. जितेंद्र वेयरिंग वाइट शूज वाइट शर्ट. वो Hmm. अमिताभ बच्चन जी हमारे, जो बहुत बड़े बड़े हमारे जो एक्टर्स हैं, वो Yes. अभी भी हैं. अभी भी दे आर बेटर देन हीरोज, बट दे आर रेट्रो. रेट्रो Yeah. बॉलीवुड. Yes, sir. अपने जमाने के Retro. अंदर वो अमिताभ बच्चन जी चला करते थे, तो लोग कह रहे थे ना Hmm. बादशाह. रेट्रो. Hmm. आगे मतलब आने वाले समय में फ्यूचर मूवी, Yes, हम sir. पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं. तो याद रखिए, जब ब्लडर नेक वीक हो जाती है तो शुक्राणु आगे Hmm. जाने के बजाय पीछे आ जाते हैं, और पीछे आगे जाते से फिर हस्बैंड में इजैकुलेशन होता ही नहीं है. हैं. Hmm. ऑर्गेज़म होगा, इजैकुलेशन भी होगा, पर कुछ Hmm. भी शुक्राणु या उनका जो बाहर नहीं संभोग आएगा. करेंगे तो कुछ बाहर ही नहीं आएगा, सब उधर पीछे चला Hmm. जाएगा. दैट अकर्स कॉमनली इन डायबिटीज और सम Hmm. सर्जरीज इन केस दे हैपन. Yes, sir. सो जब उनका हम व्हेन वी चेक देयर यूरिन विल फाइंड, तो इसके अंदर आदमी क्या बोलेगा? वेरी गुड अराउजल, very good erection, very good penetration, very Hmm. good orgasm, and very, very good ejaculation. Ejaculation is a feeling. He is Hmm. ejaculated, but आगे कुछ नहीं आया तो पीछे चला गया. Yes, पीछे It's चला called गया. dry ejaculation. It's also called Yes, yes, yes. retrograde ejaculation. The dry is also called aspermia in the terms. Hmm. Yes, sir. Yes. Hmm. It is one of the commonest reasons which we look at when we're working. It's called, and there's a way to handle it. In such cases, you can give them some medication to strengthen the bladder neck. उनका जो यूरिनरी ब्लैडर को हम कुछ उनको हम मजबूत बना सकते हैं. वी कैन गिव देम सम मेडिकेशंस, और अगर वो कुछ खराब दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें हम बंद कर सकते हैं. एंड फाइनली वी कैन डू यूआई और आईवीएफ फॉर देम. सो दैट वर्क्स वेरी वेल Yes, फॉर sir. Yes, yes. Absolutely. Sir, I think I'm ended with my questions. Lovely. Anyone in the any person from the public, anyone wants to ask us any question, you're most welcome. Or, So sir, we've you got, would like to add any comments from your side, sir? yeah, we have something. We have Deepika Supriya is there. Deepika, I'm sorry, I read your message now. She wanted us to speak in English, but probably I spoke bit in Hindi. Sorry for that, Deepika. Dr. Shraddha is here with us. We have got Dr. Rahim, and a lot of friends. With Dr. Rajkumar Kohli is there. So a lot of people are here, but I don't find any new Questions, question. yeah. We've covered Yeah, everything. even, We've already covered everything. जो questions हैं वो हम पहले already हम उनके बारे में बात कर चुके हैं. So, but very, very nice, and it was amazing being with you, Dr. Reena. And same here, sir. I think we should all go home with a message that men need care. Men are becoming extinct. They're losing their Yes. confidence. And Yeah. you are the people who are the right people to help a man. Because Yes, sir. no one knows man better than you. Yes, sir. They Absolutely, always, sir. they always come with the woman. They'll drag Yes. with the woman. And you Yeah. can easily treat them by talking to the, in case any female says she's having a problem, you get the man and Yes, sir. look. Then And we his guys self. are the first persons. Yeah, exactly. Otherwise, अगर आप ही पूछेंगे तो वो तो परेशान है ही. तो कहीं Yes, sir. गूगल से पूछेंगे और चला जाएगा वो. He'll go to some Ved Hakim or something. Even Ved Yes, Hakims are not yes. bad. मैं ये नहीं कह रहा कि वेद हकीम बुरे होते हैं, but I think the right people scientifically to treat are you. Yes, This is sir. what is Absolutely. right for everyone. Yes, sir. Absolutely, sir. So thank you so much, and thank you so much everyone who's present here. I really enjoyed, along with Dr. Reena, to communicate with you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sam, same here. We do it twice a month, these Facebook Lives, and very soon we'll come out with a new edition. And stay connected. If you need any help, you have numbers of Dr. Reena, you have my number. Feel free to talk to us. And I'm sure that I can actually guarantee that we'll be able to help you, because it's what we do day in, day out. Yes, डरना absolutely. नहीं, डरना नहीं, छुपना नहीं. Yes. और सारी जितनी मेरी बहनें जुड़ी हैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज लुक आफ्टर योर हस्बैंड्स, डोंट स्कोल्ड देम. Yeah. Yes, sir. Absolutely. तो लेकर डॉक्टर के पास में आना, अदरवाइज वो भटक जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे. और थोड़ा दूर भी चले गए वापस, कुंभ का मेला है, वापस नहीं आ पाएंगे फिर वो.
फिर वो कहीं और भटक जाते हैं. So thank you so much. We are Thank you, all sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, stay sir. happy and do Thank good you, and sir. do come back again. Thank you. Thank Bye. you, sir. Bye. Thank you. Bye, sir. Bye. Have a good day. Thank you, sir. Bye. Bye.